چند منٹ کی بات ہے، اس لیے آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیے، سماعت فرمائیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا جواب نہیں ہے، اور یہ وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے جن کی دعا کو کبھی رب نے رد نہ کیا، ہمیشہ ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ یہی وہ لال ہیں جنہیں امام حسنین کریمین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں لال دوڑے دوڑے آئے، امی جان امی جان، اے بنت رسول سیدہ فاطمہ، اے امی جان آج چاند رات ہے، امی جان آج چاند رات ہے، باہر سارے بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، سارے بچے ایک دوسرے کی مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ امی جان اور ابو جان نے ہمارے نئے نئے کپڑے کا انتظام کر دیے ہیں۔ اے امی جان، وہ سارے بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں، اے امی جان یہ بتائیے کیا ہمارے لیے کپڑے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور سوچنے لگی کہ سید الانبیاء کے نواسے ہیں، سبحان اللہ، سردار دو جہاں کے نواسے ہیں، ان کے دلارے ہیں، ان کے جگر پارے ہیں، اور تمام بچے کل نئے نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جائیں گے، ہمارے بچوں کے لیے ابھی تک کپڑے کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اے بیٹا تمہارے لیے بھی کپڑے کا انتظام ہو گیا ہے، کل درزی چھلا سلایا نیا نیا کپڑا لے کے پہنچا جائے گا، کل درزی آئے گا سلا سلایا کپڑا لائے گا۔ بچوں کو تشفی ہو گئی، بچوں کو تسلی ہو گئی، دونوں لال حضرت امام حسنین کریمین نیرین منیرین قمرین وہاں سے ماں کے پاس سے اٹھے اور بستر استراحت پہ جا کے آرام فرما ہو گئے۔ رات کٹتی گئی، ساعت گزرتی گئی، لمحہ پار ہوتا گیا، وقت نکلتا گیا، دونوں لال آرام سے سو رہے ہیں، دونوں بیٹے دونوں بھائی آرام سے سو رہے ہیں۔ ماں سیدہ فاطمہ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، رکوع پہ رکوع، قیام پہ قیام کیے جا رہی ہے۔ اب آپ عبادت و ریاضت میں لگی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تم بھی تو اسلام کی شہزادی ہو، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ، وہ سیدہ فاطمہ ہے، نبوی سے اذان کی آواز کانجوں میں آنے لگے، سیدہ فاطمہ رونے لگی، اے مولا کریمہ کا سادہ بار الہ، اتنی چھوٹی راتوں کو کیوں بنا دیا کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر پاتی؟ وہ میری ماں اور بہنوں، تم بھی تو اسلام کی شہزادی ہو، نماز تک نہیں پڑھتی ہو، بچے کا بہانہ، بچوں کا بہانہ ہے کہ گود میں مولانا صاحب بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ ارے تیرا لال، تیرا بیٹا، تیرا لگتے جگر نور نظر، یہ بتاؤ ایمان سے بتاؤ، کیا امام حسین سے اچھا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام حسین وہ امام حسین ہے جن کو پیارے نبی اپنے لبوں سے چوما بھی کرتے ہیں اور اپنے ناک مبارک سے سونگھا بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو چومنے کی چیز ہے، پیارے نبی نے فرمایا اے جانثارو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ چمنستان فاطمہ کے دو شگفتہ پھول ہیں، اور پھول چوما نہیں جاتا بلکہ پھول تو سونگھا جاتا ہے۔ امام حسین سے اچھا تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، حضرت فاطمہ حضرت زینب سے اچھی تیری بیٹی نہیں ہو سکتی، تب بھی تو بہانہ پہ بہانہ کیے جا رہی ہو۔ آئے میری ماں اور بہنوں، حضرت سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، ذرا سا سبق لے لو، تھوڑی سی بھیک لے لو۔ وہ سیدہ فاطمہ ہے، ایک سجدے میں ساری رات کٹ جائے، مسجد
नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगे, रोने लगे, बिलखने लगी, ए मौला इतनी छोटी रात को क्यों बना दिया कि तेरी फातिमा एक सजदा अदा नहीं कर पाती। आए मेरी माँ और बहनों, वो सैयदा फातिमा है, उनकी जिंदगी से थोड़ी सी भीख ले लो, तुम्हें जीने का तरीका आ जाएगा, तुम्हें जीने का तरीका आ जाएगा, चलने का सलीका आ जाएगा, पहनने का सलीका आ जाएगा। वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा फातिमा है कि अल्लाह की बारगाह में सजदे पे सजदा किए जा रही हैं। जब तक मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगी, हजरत सैयदा फातिमा मस्जिद नबवी की अजान को सुनने के बाद फौरन आप नमाज फजर की तैयारी शुरू कर देती है, यानी सुन्नत की नियत बांध लेती है। जब तक दोनों लाल सोए हैं, उनके कानों में भी अजान की आवाज गूंजने लगी, दोनों लाल उठ के बैठ गए, दोनों लाल उठ के बैठ गए। देखा तो माँ भी सजदे में है, दोनों लाल उठे और उठे गए, माँ के करीब खड़े हो गए, माँ का इंतजार करने लगे। अम्मी जान जब नमाज से फारिग हो जाए, सलाम फेर दे तो हम लोग पूछे हमारा कपड़ा आया कि नहीं आया। दोनों लाल है, हजरत इमाम हसनैन करीमैन है, इमाम हसन हुसैन है, दाएं बाएं जानिब खड़े हैं, माँ के इंतजार में है कि फारिग हो जाए तो पूछा जाए अम्मी जान हमारा कपड़ा आया कि नहीं आया। दोनों लाल खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। सैयदा फातिमा ने जैसे ही सलाम फेरा है, देखा कि हमारे दोनों लाल दोनों जानिब खड़े हैं, हाथों को उठाई, हे मौला हे करीमा सादा बंदा नवाजा ए बारे लहा, तेरी बंदी फातिमा ने अपने लालों से वादा कर लिया है, अपने बच्चों से वादा कर लिया है। मौला निकाल जुबान से निकली हुई बात की लाज रख लेना बारे लहा, लाज रख लेना। अभी हजरत सैयदा फातिमा के हाथ उठे हैं, खुदा की बारगाह में दुआ हो रही है, दोनों लाल खड़े हैं। रब ने फरमाया ए जिब्रील आमीन, अरे यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, वो देखो मेरी बंदी फातिमा सैयदा फातिमा का हाथ उठा हुआ है। आए जिब्रील जन्नत में चला जा, जन्नती लिबास ले ले, आबे कौसर में गोता लगा ले, आबे कौसर में गोता लगा ले, एक बार डुबा ले। जिब्रील बैठो नहीं, जल्दी करो, देखो मेरी बंदी फातिमा का हाथ उठा हुआ है। हजरत जिब्रील अमीन हुक्म खुदा पाते वहां से दौड़े दौड़े जन्नत में गए, जन्नती लिबास लिए, जन्नती थाल लिए, जन्नती खाना पोश लिए, और लिबास को थाल में सजाने से पहले आबे कौसर में गोता लगाए, और आबे कौसर में गोता लगाकर थाल में रखे, खाना पोश से सजाए, खाना पोश से ऊपर से ढांप लिए और लेके चले सैयदा फातिमा के घर चले। सैयदा ताहिरा फातिमा के दरवाजे पे आए। जब तक कि हजरत फातिमा अपने हाथों पे चेहरे पे हाथों को फेरती है, जब तक दरवाजे पे आने वाला आया, दस्तक दिया। दस्तक की आवाज सुनने के बाद सैयदा फातिमा ने पूछा आने वाला कौन है, दरवाजे पे कौन आया है। आने वाले का जवाब मुलाहिजा करो, ईमान को ताजा करो मुसलमानों। आने वाला तायरे सिदरा जिब्रील अमीन दरवाजे पे खड़े हैं, और जब अंदर से आवाज गई कि आने वाला कौन है, तो आने वाले के जवाब को सुनो। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए बिन्ते रसूल, ए सैयदा फातिमा, ए बिन्ते रसूल, ए सरकार दो जहां की लाडली बेटी, आपके दरवाजे पे आपके खानदान का पुराना दर्जी आपके बच्चों का कपड़ा लेके आया है। आपके घराने का पुराना दर्जी आपके बच्चों का कपड़ा लेके आया है। वो जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों में मुकर्रब तरीन फरिश्ता, वो हजरत फातिमा के घराने का दर्जी बन रहा है। हजरत जिब्रील अमीन ने दस्तक दिया। हजरत फातिमा अपने हाथों को कलाई को छुपाती है, आस्तीन को छुपाती है। आस्तीन को ऑपरेटर साहब वही हैं, ऑपरेटर साहब माइक के पास है, जरा ये टाएं टाएं कम कीजिए तो
लोगों को बात बुझाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, छोड़, हाँ हेलो। तो हजरत फातिमा मेरी माँ और बहनों सुनो, हजरत फातिमा वो फातिमा है कि कलाई तो कलाई, कभी किसी ने उंगली के नाखून को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, उंगली के नाखून को भी किसी ने नहीं देखा। और तुम्हारा हाल ये है कि दिखाने के लिए, दिखाने की खातिर, नुमाइश के लिए तो ऐसा ऐसा लिबास पहन के बाजारों में फिरा करती हो कि शैतान भी पनाह मांगे, शैतान भी उस लिबास से पनाह मांगे जो लिबास अंदर का था बाहर आ गया। जाड़े में सटाकी पहनते थे, वो सटाकी बाहर आ गई, पूरा ढांचा उतर जाए, पूरी मोटाई नजर आ जाए, शैतान भी पनाह मांगे। मेरी माँ और बहनों, जिस लिबास से शैतान भी पनाह मांगे और नौजवानों को बार बार घूर घूर के दिखलाने पे मजबूर करे, ये तुम ज़िना करा रही हो। नजरों की ज़िना, जुबान की ज़िना, नजरों की ज़िना है, कदम का ज़िना, ये सब ज़िना में शामिल है। जितने बार बुरी नजर से एक नौजवान किसी के जिस्म को देखेगा, अगर बुरी नजर है तो नजर का ज़िना कर रहा है। तो ये क्या है? जहन्नम में जाने का रास्ता खुल रहा है। आए मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, वो सैयदा फातिमा है कि जिस्म तो बहुत दूर है, कलाई तो बहुत दूर है, उंगली के नाखून को भी किसी फरिश्तों की मजाल नहीं जो देखा। वो सैयदा फातिमा, तो जब इतनी पारसा माँ हो, इतनी पवित्र माँ हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो, तो बेटा क्यों न शहीद आजम पैदा हो। सुभान अल्लाह, तो बेटा क्यों न शहीद आजम पैदा हो। और मिला ये है कि सैयदा फातिमा ने अपने आस्तीन में कलाई को छुपाती है और दरवाजे पे तशरीफ ले जाती है, साइड होके दरवाजा खोलती है। आने वाला दर्जी थाल सजा सजाया पेश कर रहा है, हजरत सैयदा फातिमा अपने हाथों में ले रही है और लेने के बाद जल्दी से अपने घर में टूटी हुई चटाई पे रख देती है। ईद की सुबह है, ईद की सुबह है। सैयदुल अंबिया को अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा से बड़ा प्यार है। सुभान अल्लाह। आए नौजवानों, किसी को बेटी होती है तो मुंह बुलबुल्ला की तरफ फुलाता, हाँ मुंह फूल के भकाऊ हो गए या गोगरिए से दोनों गाल लटक गए, कहा तो बेटी हो गई। अपनी बेटियों से प्यार करो। हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से बड़ी प्यार है। सुभान अल्लाह। और जिसको पहली बेटी हो जाए समझो कि प्यारे नबी की सुन्नत अदा हो गई। तो कभी बेटी से न घबराना, बेटी तो अपने मुकद्दर को लेके आती है, बेटी तो अपने नसीब के साथ आती है, बेटी तो अपने भाग लेकर के भाग के साथ आती है। वो अपने भाग से अपने बाप को रिज़्क़ दिलाएगी, पाप कमाएगा और सब रास्ता आसान हो जाएगा। कभी बेटी से न घबराना है मोमिनो। प्यारे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा, आप सुबह सवेरे, कौन प्यारे नबी सुबह सवेरे ईद की मुबारकबादी देने बेटी के घर तशरीफ लाते हैं। देखा कि चटाई पे सजा सजाया थाल रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी जैसे थाल को देखते हैं मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के पूछने लगे, ए बेटी फातिमा ये लाने वाला कौन? आए है, बोलिए सुभान अल्लाह। ये बेटी फातिमा ये कौन लाया, कहां से आया? ये बेटी फातिमा ये कौन लाया? सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, ए सैयदुल अंबिया, ए सरदार दो जहां, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, हमें कुछ मालूम नहीं है मगर इतनी बात जरूर है कि जो दरवाजे पे आया था, आने वाला लाया था और यही कह रहा था हम आपके घराने के पुराने दर्जी हैं। प्यारे नबी मुस्कुराने लगे और सैयदा फातिमा बेटी से कहने लगे, ये प्यारी बेटी सुनो सुनो, वो आने वाला कोई दर्जी नहीं था, वो आने वाला तो तमाम फरिश्तों में मुकर्रब तरीन फरिश्ता जिब्रील था। ये बेटी जिब्रील था और तूने अपने बच्चों से वादा कर लिया था, ए बेटे सिला सिलाया लिबास आ जाएगा। ए बेटी फातिमा तेरी दुआ को रब ने कबूल कर लिया। ए बेटी फातिमा, ए सैयदा फातिमा, सुनो
नवासे, जन्नती आबे कौसर में धुला हुआ कपड़ा पहनेंगे। जन्नती आबे कौसर में धुल करके आया है ये बेटी फातिमा, ये जन्नती लिबास है, जन्नती आबे कौसर में धुल के आया है ये बेटी फातिमा। ये हमारे नवासों का हक है, ये हमारे नवासों का मुकद्दर है, ये हमारे नवासों का नसीब है। ए मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, वो सैयदुल अंबिया का घराना है, वो ज़माना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत है। वो प्यारे नबी के खून है, प्यारे नबी की आल है, प्यारे नबी के लाल है। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी के लाल। ऐ मोमिनो सुनो, ऐ मोमिनो सुनो, इमाम हसन हुसैन बने कैसे? आओ कुर्बान जाओ, इनके मुकद्दर को, इनके नसीबे को, इनकी अजमत को पहचानो, इनकी शान और शौकत को पहचानो। दुनिया की कोई माँ, दुनिया की कोई बहन अगर चाहे कि 30 दिन हम कुरान पाक पढ़ने नहीं पढ़ सकती है, बोलिए नहीं पढ़ सकती। चाहे कि महीने के 30 दिन हम नमाज पढ़ने नहीं पढ़ सकती है, इसलिए कि बीच में एक बीमारी पैदा हो जाती है, जिस बीमारी की वजह से नमाज छोड़ जाती है, तिलावत छोड़ जाती है। मगर आओ आओ, इसी सरजमीन पे, इसी आसमान के नीचे एक ऐसी खातून भी है, एक ऐसी खातून है जिनको सैयदा फातिमा कहा जाता है, जिनको सैयदा फातिमा कहा जाता है। वो 30 दिन नमाज पढ़ती हैं, वो 30 दिन नमाज पढ़ती हैं, वो सालों साल नमाज पढ़ती हैं, वो सालों भर इबादत करती हैं, वो सालों भर नमाज पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, कभी कज़ा नहीं होता, कभी तिलावत नहीं छोड़ती। ऐ मोमिनो आओ आओ, जरा सा मुलाहिज़ा फरमाओ, क्या सैयदा फातिमा को वो बीमारी नहीं होती थी? सुभान अल्लाह, क्या सैयदा फातिमा को वो बीमारी जो महीने में शुरू होती वो नहीं होती थी? कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा उस बीमारी से पाक है जो बीमारी आम औरतों को हुआ करती है कि महीने में वो मुकम्मल इबादत नहीं कर पाती। आओ देखो, सैयदा फातिमा की ज़ात गरामी है कि उस बीमारी से पाक है, उनको वो हैज़ की बीमारी नहीं है, उनको वो महीने की बीमारी नहीं है, वो सैयदा फातिमा है। लेकिन अब मुलाहिज़ा फरमाया जाए, ये जो बीमारी हुआ करती है, इसी बीमारी के लेकर के तो सब कुछ मामला है। जब औरत हामिला हो जाए तो ये बीमारी बंद हो जाए, ये बीमारी बंद हो जाए। पता ये चला कि इसी खून से बच्चों की नुमाइश, बच्चों को परवान चढ़ाया जाता है, बच्चों के पेट में, बच्चों को पेट में ग़िज़ा मिला करती है, यही वो खून है जो खून रुक जाया करता है। तो आओ अब सवाल पैदा हो रहा है कि जब सैयदा फातिमा को वो खून नहीं है तो हजरत इमाम हसनैन करीमैन कैसे बने? आखिर कैसे बने, बोलिए कैसे बने? जब वो खून नहीं तो कैसे बने? कैसे? आओ मैं क्या बताऊं, चलो अजमेर चलो, बरेली की सरजमीन पे चलो, आला हजरत की बारगाह में चलो। ऐ इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िले बरेलवी, आप भी बता दीजिए कि ये बने तो कैसे बने? तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये वो घराना है, ये वो घराना है जो नूर ही नूर है। आओ उस नूरी घराना से तरीका सीख लिया जाए, आओ उस नूरी घराना से तरीका ले ले, जीने का सलीका आ जाएगा, जीने का सलीका आ जाएगा। आएगा कि एक भाई दूसरे भाई को, भाई की तरक्की को देख करके उसके कदम को खींच रहा है और सोच रहा है कि जल्दी से ये पीछे आ जाए, ये आगे ना बढ़े, तरक्की न कर।
वो तरीका, अरे मोमिनों कुर्बान जाओ, अरे मुसलमानों कुर्बान जाओ, आओ जरा तरीका सीखे, आओ जरा सलीका सीखे। आज हम और आप खेत खलिहान दुकान मकान जायदाद के नाम पे लड़ते हैं। आज हमारा हाल ये है कि खरीदारी के नाम पे लड़ते हैं, जमींदारी के नाम पे लड़ते हैं। आओ चलो इमाम हुसैन के खानदान से तरीका ले लो, सलीका ले लो। आओ जरा सा देखा जाइए कैसा घराना है। यहाँ जायदाद के नाम पे लड़ाई हुआ करती है, वहाँ जान देने के लिए लड़ाई हो रही है, सुभान अल्लाह। वहाँ जान कुर्बान करने के लिए लड़ाई हो रही है। वो कौन दो शहजादे हैं? ये वही शहजादे हैं जो हजरत इमाम मुस्लिम के नौनिहाल हैं, हजरत इमाम मुस्लिम के लगते जिगर हैं। ये दोनों लाल हैं, ये दोनों लाल हैं। हारिस के घर जो ये दोनों लाल हैं आराम कर रहे हैं। आए मेरे मिलत के नौजवान साथियों, किस्मत के फूटी किरण है, ये कहाँ जाए किधर बिखरे किधर निखरे। ये मामला ये है कि उसी कूफे की सरजमीन की वादियों का चक्कर लगा रहे हैं। ये बच्चे कहाँ जाएं कैसे जाएं। इसी में इसी दरमियान में आया सिपाही आया, यजीदी सिपाही आया, यजीदी कुत्ता आया। आया देखा कि दो नूर की किरणें हैं और ये दोनों नूर की किरण कहाँ बैठे हुए हैं? एक नहर के किनारे बैठे हुए हैं, एक पेड़ के खोह में बैठे हुए हैं। आए मेरे मिलत के नौजवान साथियों, अब मामला ये है कि वो बच्चे जैसे ही देखे हम गए, डर गए और डरने लगे, सिसकने लगे। आखिर वो नहनगार कमीने ने देख लिया और देखने के बाद कहने लगा तुम कौन हो, बता दो सही सही, कहाँ से आए हो? अरे ये आले रसूल है, नबी का घराना है, ये सैयदजादे हैं, ये खानवादे मुस्तफा है। झूठ बोले तो कैसे बोले? इन्होंने साफ साफ कह दिया मैं मुस्लिम बिन अकील के दो शहजादे, हम इस कूफे में छूट गए हैं, हम कहाँ जाएं किधर जाएं। अब उस नहनगार कमीने ने अपने चुंगल में लिया और घिसेटता हुआ लेके चला और लेके चला है इस अंदाज में लेके चला है जैसे कोई नहनगार कमीना हो और नौनिहाल बच्चों को खींचता हुआ लेके जा रहा हो, बेदर्दी के साथ खींचता हुआ लेके जा रहा था। वो दोनों बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। घिसेटते घिसेटते दोनों बच्चों के ठेहुने छिल गए, दोनों बच्चों के पांव जख्मी हो गए, लेके चला जा रहा है। उसी दरियाए फुरात के किनारे पहुंचा जिस दरियाए फुरात के पानी इमाम हुसैन ने न पिया, जिस दरियाए फुरात के पानी को इमाम हुसैन ने नहीं लिया। ये पानी, ये पानी, ये पानी। अरे मेरे इमाम, कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन पानी को तरस कर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे इमाम पानी को तरसते। अरे मेरे इमाम पानी को नहीं तरसते, बल्कि दरियाए फुरात लबे हुसैन को तरस गया। दरियाए फुरात लबे हुसैन को तरस गया। अगर ये खानदान अपने लब को लगा दे तो वो मुहतशम हो जाए, मुहतरम हो जाए, बड़ी बाइज्जत हो जाए, बड़ी ही बेहतरीन अनमोल वो नमूना, वो तोहफा हो जाए जिसको ये अपने लबों को लगाते, अपने हाथों को लगाते। क्यों नहीं अपने घरों में पत्थर और लोढ़े को चूमते हो? क्यों नहीं सील और लोढ़वत को चूमते हो? आओ देखो, वो भी तो पत्थर है जिसको मुस्तफा ने चूमा है, जिसको हजरे असवद के नाम से जानते हो। जिसको नबी चूमे वो हजरे असवद बन जाए। अगर मेरे इमाम हुसैन उस पानी को पी लेते तो यकीनन आबे जमजम की तरह वो भी मुहतरम हो जाता, वो भी मुहतशम हो जाता। मगर दरियाए फुरात के मुकद्दर में नहीं था कि मेरे हुसैन के लबे पाक लगे। है मेरे इमाम, क्या आप दरियाए फुरात के पानी को तरस गए? नहीं, मेरे हुसैन पानी को नहीं तरसे, दरियाए फुरात लबे हुसैन को तरसा। अरे इसका जवाब तो अजमेर की सरजमीन पे बैठे बैठे ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दिया कि सुनो, मेरे दादा को कभी प्यासा ना समझना, मेरे दादा को प्यासा ना समझना। मेरा दादा मुहताज नहीं है, मुख्तार है। मेरा दादा मुहताज की औलाद नहीं, मुख्तार की औलाद है। मेरे दादा को मुहताज ना समझना। आओ जवाब दे रहे हैं अजमेर की सरजमीन पे बैठे हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पूछो, ये ख्वाजा गरीब नवाज, ये मोइनुद्दीन चिश्ती संदरी, आप बताइए क्या इमाम हुसैन पानी को तरसे? तो आप कहते हैं सुनो, मेरा दादा पानी को नहीं तरसा, मेरा जद्दे करीम पानी को नहीं तरसा, करके दरियाए फुरात लबे हुसैन को तरस गया। क्यों? आओ फरमाते हैं कि सुनो, मेरा मामला देखो,
मैं अजमेर की धरती पे हूँ और यकीन जानो कि पोते के पोते के पोते के पोते का पोता हूँ, न जाने कई नस्लों के बाद हूँ। जब पोते का ये आलम है तो दादा का आलम क्या होगा। आओ देखो, जब अना सागर तालाब का पानी बंद हो गया, अना सागर तालाब का पानी पृथ्वीराज ने बंद करा दिया। एक कतरा उस फकीर के पास पानी न जाए, उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। पहरा लग गया, सिपाही भाले बर्छी लेके खड़े हो गए, एक कतरा पानी नहीं जाएगा। आए मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरे इमामे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम चले पानी लेने। देखा कि दरवाजे में, देखा कि अना सागर के किनारे पहरा लगा हुआ है, ये भाले बर्छी लेके खड़े हैं। जाने के बाद जैसे ही सोचे पानी ले ले, सिपाहियों ने कहा कि हरगिज एक कतरा पानी नहीं ले सकते हो, ये अना सागर तालाब का पानी नहीं जा सकता है। आए मोमिनो कुर्बान जाओ, आज मामला ये है कि वहां से खादिम दौड़े दौड़े चले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आए। आने के बाद अर्जी पेश करने लगे, हुजूरे वाला, ए ख्वाजा, ए हिंदुस्तान के राजा, ए महाराजा, पानी पे तो पहरा लगा हुआ है, एक कतरा पानी मिलने वाला नहीं है, एक कतरा पानी मिलने वाला नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खादिम आके अर्जी पेश कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, फिर चले जाओ, जाके कहो कि बस एक कूजा दे दो, एक लोटे पानी दे दो, बस इसी में हम गुजारा कर लेंगे। मगर वहां जाने के बाद पता चला कि एक कूजा, एक कटोरा तो बहुत बड़ी बात है, एक कतरा पानी नहीं जा सकता, इसलिए कि बादशाह सलामत का ऑर्डर है। ऑर्डर 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 इज ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर है, एक कतरा पानी नहीं जाएगा। आओ देखो पोते का आलम देखो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खादिम दौड़े दौड़े पहुंचे, हुजूरे वाला, हम लोग कोशिश करके नाकाम हो गए, एक कतरा भी पानी मिलने वाला नहीं है, उस पानी से कतरा यहाँ तक आने वाला नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो सुनो, अगर पानी पे पहरा पड़ा हुआ है, पहरा डाल दिया गया है, तो घबराने की बात नहीं है। ये मेरा कासा ले लो, ये मेरा कासा ले लो, ये मेरा कूजा ले लो और लेके चले जाओ और जाके अना सागर तालाब के पास खड़े हो जाना और कह देना, ये अना सागर तालाब का पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, ए अना सागर तालाब का पानी तुझे ख्वाजा महाराजा ने बुलाया है। आए मोमिनो, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज नहीं गए थे, बल्कि खादिम गए थे। फरमाने ख्वाजा था और कौले ख्वाजा था, जुबाने खादिम है। आओ देखो, मुलाहजा करो, ये खादिम गए, जाके ये कूजा लेके खड़े हो गए, ए अना सागर तालाब का पानी, ए पानी, ए पानी, हमारे राजा, हमारे महाराजा, हमारे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है, ए पानी, हमारे ख्वाजा ने तुम्हें याद किया है। एक कूजे में सारा पानी सिमट के आ गया, सारा पानी खुश्क हो गया, सारा पानी खुश हो गया, खुश हो गया। तो आए मोमिनो, आओ देखो, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ये आलम है कि पानी को बुलाएं तो पानी चला आए, सुभान अल्लाह, पानी को बुलाएं तो पानी चला आए। अगर मेरे हुसैन चाहते, अगर मेरे हुसैन चाहते दरियाए फुरात के जानिब इशारा कर देते तो दरियाए फुरात लहरता हुआ खेमे के पास आ जाता। आजा कि नहीं आता? आता। दरियाए फुरात खेमे के पास आ जाता। लेकिन मेरे हुसैन पानी को नहीं तरसे, इसलिए कि पोता कह रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जब पोते का ये आलम है कि अना सागर तालाब का पानी बुला ले तो मेरा दादा बुला सकता था, मगर दरियाए फुरात के मुकद्दर में नहीं था कि लबे हुसैन उसमें लग जाए, उसके मुकद्दर में नहीं था। आए मोमिनो, कुर्बान जाओ, यहाँ पे करामत है, वहाँ पे इस्तिकामत है। यहाँ पे करामत, अजमेर की धरती पे करामत दिखानी है, वहाँ पे इस्तिकामत। करामत तो वो है कि 40 दिन आदमी अमल कर ले, अगर जम के इबादत कर ले तो बा करामत हो जाए। आंख बंद करे रसगुल्ला आ जाए, आंख बंद करे गुलगुल्ला आ जाए, आंख बंद करे फुलौड़ी आ जाए, पकौड़ी आ जाए। जम के इबादत करके देखिए, अमल करके देखिए, गरम गरम रसगुल्ला आई लोग के खिलेबो, बड़ा पहुंचल बा हो, बड़ा पहुंचल बा, गरम गरम रसगुल्ला खिला दे तरह
ताजा ताजा इलायची मंगा देता हूँ, लौंग मंगा देता हूँ। का बड़ा पहुँचल पाऊँ। ये कैसे होता है? ये करामत है। 40 दिन जम के अमल कर दो, बा करामत हो जाओगे। मगर मोमिनो, वो करबो बला की सरजमीन पे जो नाना जान दिखला रहे थे, वो इस्तेकामत है। वो इस्तेकामत है। इस्तेकामत उस शय का नाम है कि सारी जिंदगी तमाम हो जाए, सारी जिंदगी खत्म हो जाए, मगर इंसान इस्तेकामत के मंजिल पे फायज नहीं हो सकता। मगर इस्तेकामत की मंजिल पे वो फायज नहीं हो सकता। कैसे? वो कौन बाप होगा, वो कौन बाप होगा जो जवान बेटे की लाशा उठा उठा के खेमे के पास लाए? आए बोलिए, वो कौन बाप का कलेजा होगा? वो कौन सा बाप होगा जो अपने जवान बेटों को कर्बो बला में जाने की इजाजत दे? वो कौन सा बाप का दिल होगा? ये इस्तेकामत इसी का नाम है, जहाँ सब्र तहम्मुल की आखिरी मंजिल को आदमी पार कर जाए। सुभान अल्लाह, सब्र के आखिरी मंजिल पे फायज हो जाए, इस्तेकामत है। आए मोमिनो कुर्बान जाओ, अब दोनों लाल हैं, वो दोनों लाल हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों लाल हैं। दरियाए फुरात पे पहुंचे। हारिस ने कहा जल्दी करो, मुझे सर लेके जाना है, इब्ने ज़ियाद के पास जाना है, जल्दी करो। जैसे ही बड़े के सामने तलवार उठाता है, छोटे भाई दौड़ के आगे आ गए। जैसे ही छोटे पे तलवार उठाता है, बड़े भाई झपक के आगे आ गए। ऐ नाहंजार, अरे मारना है तो पहले मुझे मार दे, मेरे भाई को छोड़ दे। सुभान अल्लाह, मारना है तो पहले मेरी जान ले ले, मेरे प्यारे भैया को छोड़ दे। यहाँ जायदाद के नाम पे लड़ाई है, वहाँ जान देने पे लड़ाई है। बोले सुभान अल्लाह। ये वो घराना है। जैसे ही छोटे भाई आए, आगे खड़े हुए, बड़े भाई तड़प के आ गए, आगे खड़े हो गए। ऐ कमीने, अगर तुम्हें गर्दन ही लेनी है तो पहले मेरी गर्दन उड़ानी पड़ेगी, पहले मुझे कत्ल करनी पड़ेगी, इसलिए कि मैं अपनी आंखों से अपने भाई की कटी हुई गर्दन को नहीं देख सकता। वहां जान देने पे लड़ाई हो रही है। ऐ मोमिनो, अब हारिस की तलवार चले तो कैसे चले? वो सोचने लगा कि कत्ल करूं तो किसको करूं, मारूं पहले तो किसको मारूं। अब दोनों भाई का मामला ये है कि दोनों मचल के जान देने पे लड़ाई कर रहे हैं। हारिस ने कहा कि जल्दी करो, फैसला करो, किसकी गर्दन को पहले उड़ा दे, किसकी गर्दन को तन से जुदा कर दे। दोनों भाइयों ने कहा, ए नाहंजार, सुनो, ये कभी नहीं हो सकता है कि एक भाई की कटी हुई गर्दन दूसरा भाई देख सके। ऐ नाहंजार, अगर मेरी गर्दन काटनी है, अगर मेरी गर्दन तन से जुदा करनी है तो सुनो, हम दोनों भाई आपस में गले से गले मिला रहे हैं। ऐसा वार करो, ऐसा वार करो, ऐसा वार करो, ऐसी तलवार चलाओ कि दोनों भाई की गर्दन एक साथ जुदा हो जाए। यहाँ जान देने पे लड़ाई हो रही है, यहाँ जायदाद के नाम पे, खेत खलिहान मकान के नाम पे लड़ाई। ऐ मोमिनो कुर्बान जाओ, ऐ मुसलमानों ईमान को ताज़ा करो। ये वो घराना है, वो नाहंजार सर को तन से जुदा तो कर दिया, लेके चला, दस्त में सजा के ज़ियाद के पास लेके चला। जैसे ही वहाँ पहुँचा, इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए हारिस क्या लेके आए हो? वो कहने लगा, मैं बच्चों का सर लेके आया हूँ, मैं बच्चों का सर लेके आया हूँ। कहा, कमीने कुत्ते, तुमसे सर किसने तलब किया था? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करतूत वैसा पाया। ऐ कुत्ते कमीने, तुमसे सर किसने तलब किया? हमें तो बच्चे चाहिए, हमें तो जिंदा बच्चा चाहिए था, ये सर लेके आ गया। अरे यजीद के दरबार में हमसे पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने सर को तन से जुदा क्यों किया? अब इसकी सजा ये है कि फौरन जल्लाद को बुलाया गया, हुक्म दिया गया कि चौराहे पे लेके चला जा।
जो जो जैसी जैसी करनी करता गया, करबो बला में पाता गया, मिलता गया। कोई आग में जल के मरा, किसी को बिच्छू ने मारा, किसी को कुत्ते ने काटा, किसी को सांप ने काटा, तड़प तड़प के मरा। अब मामला ये है मुसलमानों, क्या मामला ये है कि हुक्म हुआ, ए जल्ला ये ना हंजार कमीना दौलत के लालच में बच्चों का सर काट के लाया है, इसको चौराहे पे ले जा और कमर भर जमीन को खोद ले और जमीन में गाड़ दे और इसके जिस्म पे दही छींट दे। खूब चटकदार दही, एक जिस्म पे दही छींट दे और खूंखार भेड़ियों को छोड़ दे। वह भोय ले जाके जल्लाद चौराहे पे कमर भर जमीन में गाड़ दिया, न निकल सकता है, न उठ सकता है, न उसी में हुचुकी मार रहा है। जब तक खूंखार भेड़िया आए, दही उचल उचल देख के दौड़े, दही चाटते चाटते खोपड़ी चाटने लगे, पूरा आजू बाजू कांधा चाटते चाटते कमर भर सांप जैसे गर्दन काटा था, कमर तक सांप हो गया। मोमिनो ये करबो बला की वादी है, आओ आओ देखो ये इस्तिकामत का मामला है, ये इमाम हुसैन के सब्र तहम्मुल का मामला है। आओ चलो अब आखिरी झलक दे करके मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारे मुकर्रिर खतीब मुफ्ती असगर साहब भी 10:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये छोटी सी रात में ये मुकम्मल पैगाम, ये प्रोग्राम, ये मुकम्मल दास्तान कभी बयान नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरत है कि 2 4 6 रातें हों तो ये मुकम्मल प्रोग्राम हो। लिहाजा फिर मैं अपने अंदाज से आप हजरात के ज़हनों के मुताबिक मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब घराने की बारी आ गई है। एक एक जानिसार मैदाने करबला में जाके इमाम हुसैन पे कुर्बान होते जा रहे हैं। अब घराने की बारी आ गई है। इतनी में जैसे ही हजरत कासिम बिन हसन प्यारे नबी प्यारे अली प्यारे इमाम अली मकाम की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्जी पेश करना ही चाहते थे, जब तक इमाम अली मकाम की नजर पड़ी क्या कि उसी खेमे से छोटा सा बच्चा निकला। उसी खेमे से, वहाँ बहुत सारे खेमे जो आपके जानिसार थे, खेमे पड़े थे, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा निकला, सर पे पटका बांधे हुए, कमर में तलवार लटकाए हुए और खेमे की जानिब से, खेमे के पीछे से छुपता हुआ पहाड़ी की आड़ से चला जा रहा है। पहाड़ी की आड़ से मैदाने करबला में तलवार लिए चला जा रहा है। मेरे हुसैन पाक से रहा ना गया, देखे मचल गए। आपने फरमाया है जानिसार, अरे कोई है खेमे के अंदर, तो देखो देखो वो किसका लाडला है, वो किसका प्यारा बच्चा है, वो कहाँ जा रहा है, पकड़ के लाओ। कहाँ जा रहा है, पकड़ के लाओ। जानिसार दौड़े दौड़े गए, देखा कि छोटा सा बच्चा आंखों में सुरमा, सर पे कंघी की हुई है, और कमर में तलवार लटक रही है, और बिल्कुल बना समार निखार के उस बच्चे को दूल्हा बना के मैदाने करबला का गाजी बना दिया गया है। पकड़ के लाया गया, मेरे इमाम से रहा ना गया। मेरे इमाम ने पूछा, अरे मेरे लाल बताओ बताओ, तू किसका लाडला है, तू किसका बेटा है, तू कहाँ जा रहा था, ये सजा सवार के निखार के किसने भेजा है, किसने भेजा है? वो बच्चा कहने लगा, आए मेरे इमाम, ये ना पूछ, ये मुझसे ना पूछे मैं किसका लाडला हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका आंखों का तारा, किसका राज दुलारा है मेरे इमाम, ये मुझसे ना पूछे, इसलिए कि बयान करने के लिए मेरे पास जुबान नहीं है। मेरे पास जुबान नहीं। आए मेरे इमाम, हमसे कभी नहीं हो सकता कि मैं बयान करूं, लेकिन मेरे इमाम फरमाते कि मेरे लाल तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ये जज्बा किसने दिया, ये हौसला किसने दिया, ये कमर में किसने तलवार लटकाई है। सुभान अल्लाह। वो बच्चा मजबूर हो गया, वो बच्चा मजबूर हो के कहने लगा, ऐ मेरे इमाम पाक, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं बताने पे मजबूर हूँ। क्या मैं बता दूं किसका बेटा? क्या मैं
बता दूं किसका बेटा हूँ? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ मेरे लाल बता दे तू किसका लाडला। फिर बच्चा कह रहा है क्या मैं यकीनन बता दूं किसका बेटा हूँ? आए है सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए उस बच्चे के कलेजे पे, कुर्बान जाइए उस बच्चे के हौसले पे, कुर्बान जाइए। वो अर्ज कर रहा है आए मेरे इमाम क्या मैं बतला दूं किसका लाडला हूँ? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ मेरे लाल बता दे तू किसका लाडला है। वो बच्चा इशारा कर रहा है सुभान अल्लाह। वो बच्चा इशारा किया जो इमाम हुसैन के कदमों के नीचे लाशें पाक पड़ी थी। बच्चे ने इशारा किया है मेरे इमाम जो मुस्लिम इब्ने औसजा की लाश आपके कदमों के पास है मैं उसी का लाडला हूँ। जो मेरे बाप की लाश आपके कदमों के पास है मैं उसी का बेटा हूँ। और मेरी माँ ने कहा है आए मेरे लाल जब तेरा बाप नबी व आले नबी पे कुर्बान हो गया तो तू दुनिया में रह के क्या करेगा? तू भी जा कुर्बान हो जा। तेरे बाप जब ना रहा वो आले नबी पे कुर्बान हो गया तो आए मेरे लाल तू दुनिया में रह के क्या करेगा? तू भी जा आले नबी पे कुर्बान हो जा। इसलिए मेरे इमाम मुझे जाने दिया जाए। मेरे इमाम की आंखों में आंसू तैरने लगे उस बच्चे के कलेजे को देखने के बाद जिसके बाप के लाशें सामने मौजूद पड़े हो, खून में लथपथ बाप की लाश पड़ी हो। वो बच्चा किस अंदाज में बात कर रहा है आए मेरे मिल्लत के नौजवान मुसलमानों, अरे वो मैदाने करबला है और जितने इमाम हुसैन के सिपाही हैं वो तो हुसैनी है, उन्हें किसी चीज का खौफ और गम भी नहीं है। वो किसी चीज से डरने वाले नहीं। मेरे इमाम हुसैन बच्चे को गोद में उठाए फरमाने लगे मेरे लाल अभी तेरी उम्र बाकी है, अभी तेरी उम्र नहीं है कि मैदाने करबला में जा, खेमे में चला जा, जाके अम्मी के पास बैठ जा। वो बच्चा गिरी वो जारी कर रहा है मेरे इमाम अम्मी ने कहा है ऐ बेटा पलट के जिंदा न आना, तू भी कुर्बान हो जाना। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ बेटा तू चला जा, तेरी अम्मी मेरी बात को सुन रही है, चला जा वापस चला जा, माँ के गोद में जाके इंतजार कर। आए मेरे लाल जब घड़ी आएगी तेरी पतरी बारी आएगी या तेरी जरूरत महसूस की जाएगी तो मेरे लाल तू भी अपनी जान को कुर्बान कर देना, मगर अभी चला जा। दौड़े दौड़े आ गए हजरत कासिम बिन हसन, दौड़े दौड़े आ गए बाबा जान ए बाबा, एक एक करके शहीद हो गए, एक एक करके शहीद हो गए। ए बाबा अब तो घर वालों की बारी आ गई, अब तो अपने खानवादे वालों की बारी आ गई। ए बाबा मुझे मैदाने करबला में जाने दिया जाए। मेरे इमाम हुसैन की आंखों में आंसू तैरने लगे और फरमाते हैं ऐ मेरे लाल मैं किस मुंह से तुम्हें रन में जाने की इजाजत दूं? ऐ मेरे लाल सुनो सुनो, ऐ मेरे लाल बस तू ही एक बचा है जो मेरे भाई हसन की निशानी रह गया। वो कौन थे? हजरत इमाम हसन के शहजादे थे, हजरत कासिम। कौन थे? इमाम हसन के लाडले थे, नौनिहाल थे, वो शहजादे थे, हजरत कासिम हैं। वो अर्ज कर रहे बाबा अब तो मुझे जाने दिया जाए। बाबा ने फरमाया आए मेरे लाल तू एक भाई की निशानी रह गया है और किस मुंह से तुम्हें इजाजत दो कि मैदाने करबला में जाओ। दौड़े दौड़े हजरत कासिम बिन हसन खेमे के अंदर गए, फूफी की बारगाह में गए, जाने के बाद अर्ज करने लगे, जाने के बाद अर्ज करने लगे ऐ फूफी जान मैं कोशिश करके नाकाम हो गया, बाबा मैदाने करबला में नहीं जाने दे रहे हैं, जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐ फूफी जान आप चल के जरा सी सिफारिश कर दीजिए कि बाबा हमें मैदान में जाने की इजाजत दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहीदानी करबला, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। रउआ सब पीछे मुड़ के देखा तनी, नारा लागल हो तो रउआ सब पीछे मुड़ के देखा तनी कोई आवत का। इतना तकरीर हो गई मगर कोई के दिल ना डोलल कि नारा बोलल ना, बस थपकी मार। अरे इमाम हुसैन सुभान अल्लाह।
पूछना, बस इसी के बाद मकाम की बारगाह में अल-मुख्तसर हज़रत कासिम बिन हसन दौड़े दौड़े आए। बाबा अब तो जाने दिया जाए। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया है मेरे लाल तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तब हज़रत कासिम बिन हसन ने सोचा कि अब तो बाबा जाने नहीं देंगे, कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हज़रत कासिम बिन हसन ने अर्ज़ किया, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा हुसैन, एक बात मैं अर्ज़ करूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ लाइए, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं मुख्तसर कर दे रहा हूँ, तशरीफ लाइए। ए बाबा, ए बाबा, अब तो आप मुझे जाने नहीं दे रहे, मगर एक रास्ता जरूर है, मैं वो रास्ता निकाल दूं। इमाम कासिम बिन हसन ने सोचा कि अब वो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने अर्ज किया, ए बाबा हुसैन, एक बात कहूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? हजरत कासिम बिन हसन ने अर्ज किया, ए बाबा, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, ए बाबा, मुझे याद है कि मेरे बाबा हसन ने मुझे एक राइटिंग दी थी, एक तावीज़ बना के दी थी, और उन्होंने फरमाया था कि मेरे लाल ए कासिम, सुभान अल्लाह, चल के सुभान अल्लाह, आए मेरे लाल कासिम, सुनो सुनो, जब मैदाने करबला हो, जब मैदाने करबला की बाती हो, और पूरे खानदान वाले एक करके जानिसार हो गए, जान को कुर्बान कर दिए हो, ए बेटा कासिम, अली अकबर को करबला में जाने से पहले तुम अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान को निछावर कर देना, अली अकबर को ना जाने देना। तो ए बाबा, वो बात में छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तब की ये बात है, वो राइटिंग है। और फरमाया था, ए बेटा, जब करबला में जाना और खानदान वाले लुट गए हों, तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। हज़रत कासिम बिन हसन ने अर्ज़ किया, ए बाबा, अब तो फरमाइए, अब क्या कहते हैं? तो हज़रत इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए मेरे लाल, अब तो उस तावीज़ को खोलो, खोल के देखो मेरे भैया ने क्या कहा है। अरे बोली सब है, मुहम्मा खोली सब है। ए बाबा, अब तो मुझे जाने दिया जाए। जब तावीज़ आपने खोला है, जब तावीज़ को देखा, राइटिंग नजर आई, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू तैरने लगे और फरमाते कि मेरे लाल, आए मेरे लाल, अब मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं रन में जाने से? अब मैं रन में जाने से तुम्हें किस मुंह से रोकूं? ये तो मेरे भैया की वसीयत हो गई, सुभान अल्लाह, ये मेरे भाई हसन की वसीयत हो गई। अगर मैं रन में जाने से रोकता हूँ तो मेरे भाई की रूह को ठेस पहुंचेगी। ऐ मेरे लाल, अब हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, इजाजत ही इजाजत है। अब जा सकते हो, अब जा सकते हो, अब जा सकते हो, अब इसके आगे जा सकते हो तो बात खत्म है। फिर कभी मौका मिला तो जा सकते हो, आगे जाएंगे।